السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ خواتین حضرات، ہم لوگ بہت زیادہ پری آکوپائڈ ہوتے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کو جب میں دیکھتا ہوں، ہم لوگ اپنے چکروں میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم بالکل بھول جاتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ کبھی تحریک لبیک کا مسئلہ ہے، کبھی مریم صفدر کا مسئلہ ہے، کبھی جاتی عمرہ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے۔ اور ان تمام امور میں ہم اتنے وہ کہتے ہیں نا کہ کھب جاتے ہیں، تو ہم بالکل بھول جاتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ میں آج ذرا تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے، اور مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ اسرائیل کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہے کہ 23 مارچ کو وہاں پہ الیکشنز ہوئے تھے، اور اسرائیل آپ کو پتہ ہے ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے، امریکہ کا پٹھو ہے، امریکہ کا بغل بچہ ہے، اور پورے مڈل ایسٹ کو وہ کنٹرول کرتا ہے، بلکہ اب تو سمجھ لیں کہ امریکہ کے ذریعے وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو وہاں کی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں۔ 23 کو مارچ کو الیکشنز ہوئے، اور ان الیکشنز میں ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی کلیئر وکٹر نہیں ملا، اور 2 سال میں یہ چوتھا الیکشن تھا نیتن یاہو کا، اور آپ دیکھ لیں کہ ایک بھی الیکشن میں ان کو کلیئر کٹ میجورٹی نہیں مل سکی۔ اسی لیے بار بار ہنگ پارلیمنٹ آ جاتی ہے، اور پھر دوبارہ الیکشن کرانا پڑ جاتا ہے۔ تو ایک بڑی ہی ڈیوائسو قسم کی، نہ صرف وہ خود پرسنالٹی ہیں بلکہ جو پالیٹکس ہے اس کو بھی انہوں نے بہت ڈیوائسو کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو چکی ہوئی ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب ہوا کیا ہے کہ 4 دفعہ الیکشنز میں ناکامی کے باوجود ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات، ابھی جو الیکشن ہوا ہے اس کے بعد بھی تقریباً آپ دیکھیں 23 مارچ کو مہینہ ہونے والا ہے، ابھی تک کوئی وہ کولیشن گورنمنٹ نہیں بنا سکے ہیں۔ خود تو ان کو ظاہر ہے کہ میجورٹی ملی نہیں، اب ایک ہی چانس تھا کہ وہ کولیشن بنائیں، اور اس میں پریزیڈنٹ نے ان کو 1 مہینے کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ ابھی 15 دن اس میں مزید رہتے ہیں، بلکہ 1.5 مہینہ سمجھ لیں، 1.5 مہینہ کا ٹائم ہے، تو اس میں 15 دن ابھی بھی رہتے ہیں، تو ابھی تک وہ نہیں کر سکے۔ اب آج کی امپورٹنٹ خبر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ منڈے کے دن ایک کمیٹی تھی جو کہ پارلیمنٹری کمیٹی تھی، جس کو ارینجمنٹ کمیٹی کہتے ہیں، اس کا جو کنٹرول تھا وہ انہوں نے لوز کر دیا۔ یعنی گورنمنٹ میں ابھی بھی چونکہ پرائم منسٹر تو وہ ہیں، تو انہوں نے وہ جیسے ہی وہ لوز کیا ہے، اسے ہوا کچھ نہیں ہے۔ بیسیکلی پریکٹیکلی اسپیکنگ کوئی حکومت ان کی ختم نہیں ہو گئی، یا فار دیٹ میٹر ان کی گورنمنٹ بن نہیں گئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ nothing has changed but everything has changed، کیونکہ اس کمیٹی کے بعد جو آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں وہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد نیتن یاہو کسی کے ساتھ کولیشن بنانے میں تقریباً ناممکن حد تک وہ چلے گی، اب نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں، انہوں نے وہ اخلاقی جو ایک معیار ہوتا ہے وہ لوز کیا ہے، کیونکہ جیسے یہ ارینجمنٹ کمیٹی جو ہے اس نے ان کے خلاف ووٹ کیا، اور اس میں مختلف لوگ جو تھے وہ ان کے خلاف چلے گئے، تو اس کے بعد کلیئر کٹ یہ چیزیں سامنے نظر آنی شروع ہو گئیں کہ اب مسئلہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر ہیں، یہ ہیڈ آف لارجسٹ پولیٹیکل فیکشن جو ہے پارلیمنٹری فیکشن، اس کے obviously ایک لیڈر رہے ہیں، ابھی بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنلی بھی ان کی کافی انگلش بڑی اچھی بول لیتے ہیں۔ امریکہ میں بھی لوگ ان کو بڑا پسند کرتے تھے ایک زمانے میں، مجھے یاد ہے میں جب وہیں پہ تھا، تو اس وقت سے یہ چلے آ رہے ہیں، لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر۔ لیکن یہ جو کمیٹی کا معاملہ ہوا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈیپتھ آف ہز پرابلمس، کہ کتنے گہری کھائی میں یہ گر چکے ہوئے ہیں اس وقت، کہ جس میں سے نکلنا مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ان کے لیے ناممکن تقریباً ہو گیا ہے۔ اچھا، ایک چیز جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جو رائٹ ونگ، جو فار رائٹسٹ جس کو آپ کہتے ہیں کہ پارٹیز ہیں، ان میں ایک سموٹرک جو نام ہے، وہ اگر تو وہ ایگری کریں کہ وہ ایک ایسی پارٹی میں کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں جس کے وہ خلاف ہیں، پھر ایک دوسری عرب مسلمانوں کی جو وہاں پہ ایک پارٹی ہے، رام جس کو کہتے ہیں، اور منصور عباس جس کے لیڈر ہیں، ان کو جب تک آن بورڈ نہیں لیتے اس وقت تک تو یہ بہت مشکل ہے۔ یا پھر آلٹرنیٹیولی یہ ہے کہ ان کے جو لیکوڈ پارٹی جو نیتن یاہو کی ہے، اس کے سابق
मिनिस्टर थे गिडियन सार, जब तक वो नहीं आते या तो वो इनको सपोर्ट करना शुरू कर दें तो फिर ये वजीर आजम बन सकते हैं दोबारा से, या इनकी हुकूमत बन सकती है। ये दो चीजें अगर नहीं होती, और ये बाय द वे ये मैं आपको बता दूं कि ये जो गिडियन साहब जो हैं ये कहते रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि नेतन्याहू आपके प्राइम मिनिस्टर हों तो डोंट वोट फॉर मी, ये इनकी कैंपेन का नारा था। तो अब आप ऐसे बंदे से कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो नेतन्याहू को सपोर्ट करेगा? अब ये जो सिचुएशन है ये बहुत खतरनाक हो चुकी है। ये अगर नहीं दोनों वोट्स देते उनको तो फिर आप समझ लें कि नेतन्याहू हैज नो गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट गई, तो फारिग हो जाएंगे। अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा कि 15 दिन का अभी भी मैंडेट उनके पास है, प्रेसिडेंट ने उनको कहा हुआ है कि 15 दिन का जो अभी रहता है मैंडेट, उसके अंदर अंदर वो कोलिशन के लिए कोशिशें कर सकते हैं, उसके बाद फिर वो एक्सपायर हो जाएगी और उनको जाहिर है कि अपोजिशन में जाना पड़ेगा। तो जब तक वो नहीं होता उस वक्त तक तो इनकी हंग पार्लियामेंट या इस सिचुएशन में चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन उनके जो विप हैं लिकुड पार्टी के, यानी नेतन्याहू की पार्टी के जो विप हैं, उन्होंने ये कह दिया कि जी हमने सोचना शुरू कर दिया है और बल्कि इंटरनलाइज करना शुरू कर दिया है कि जो राइट विंग पार्टीज हैं उनको अब हम लीड करेंगे अपोजिशन में, और नेतन्याहू साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर होंगे। यानी उन्होंने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया है अपनी डिफीट को कि हमसे कोalition नहीं बन रही, और अब हम, ये उनके विप कह रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं वो, जोहर इनका नाम है, तो वो कह रहे हैं कि जनाब हम अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं। अब नेतन्याहू साहब जो हैं, आपको पता है कि उन्होंने अभी तक कोई भी जो इलेक्शन है क्लियर कट, पिछले 2015 से लेकर अभी तक कोई क्लियर कट इलेक्शन नहीं जीता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये खुद भी राइट विंग पार्टी हैं, लेकिन जो दूसरी राइट विंग पार्टीज हैं उनके साथ इन्होंने इस तरह के मामलात किए हैं कि वो इनसे दूर हो गई। 20 कनेसेट की जो जो पार्लियामेंट है इसराइली, जिसको कनेसेट कहते हैं, उसमें जो 20 नशिस्तें हैं वो राइट विंग पार्टीज की हैं। अब अगर राइट विंग पार्टीज के साथ इनके ताल्लुकात ठीक होते तो वो इनको 20 दे के ये आराम से गवर्नमेंट बना सकते थे, लेकिन ये इनकी इतनी डिवाइसिव और तकसीम कर देने वाली शख्सियत है, लोगों को अपने से दूर कर देते हैं, पोलराइज कर देते हैं, तो वो लोग जो हैं वो अब इनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। अब हो ये रहा है कि जो ड्रामा हुआ है इसमें खासतौर पे इस जो अरेंजमेंट कमेटी का, उसमें आप देखें कि जो मामला जो चल रहे थे उसमें उन्होंने जो डिस्कशन की है उसमें उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जी हम नेतन्याहू को सपोर्ट नहीं करेंगे। और यही कमेटी जो थी उसी की इस फॉर्मेशन से पता चल गया कि ये एक बड़ी शॉर्ट लिव्ड किस्म की कमेटी होती है, और उसमें एक कम से कम अंदाजा हो जाता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। अब ये जो अरेंजमेंट कमेटी है, जैसे मैंने पहले कहा, ये बिल्कुल इसकी कोई इंपॉर्टेंस ऐसा सच नहीं है, सिवाय इसके कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा हो तो वो उसको अरेंज करने में, उसको आगे लेके जाने में अपना रोल प्ले करती है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ये है, यानी एक चीज मैं आपको बताऊं, इसका जो मेन आर्गुमेंट है वो ये है कि whoever controls the arrangement committee controls the legislative process या legislative schedules। आप अंदाजा लगाएं कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूरे का पूरा जो लेजिस्लेटिव स्केड्यूल है वो आपके हाथ में आ जाता है अगर आप इस कमेटी को कंट्रोल कर रहे हो। ये शॉर्ट लिव्ड है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो सूरत बनी है इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज आ गई है कि अब जो दूसरी पार्टीज हैं वो किस तरीके से मिलके, इंक्लूडिंग मंसूर अब्बास जो कि अरब मुस्लिम पार्टी को रन कर रहे हैं, राम जिसका नाम है, अब वो अगर होता है तो फिर उनकी हुकूमत बन जाएगी और मुख्तलिफ उनके ऊपर जाहिर है कि रोटेशन के भी चांसेस हो सकते हैं। और वरना फिर ये है कि अच्छा हुआ ये है कि ये जो अरेंजमेंट कमेटी है इसमें नेतन्याहू साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि हमें 5th पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है वो उसकी तरफ जाना चाहिए और हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जिसमें हम डायरेक्ट इलेक्शन का बंदोबस्त कर सकें। यानी अब वो कह रहे थे कि मेरा इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट हो, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन में लोगों के पास हम जाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि जी क्या आप नेतन्याहू साहब को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मानते हैं या नहीं मानते हैं। यानी इलेक्शन उसी तरह का रहेगा, लेकिन हम लोगों से ये मैंडेट लेने की कोशिश करेंगे कि जी आप सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट दें और बताएं कि आप
प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को मानते हैं या नहीं मानते हैं, या आप उसको पसंद करते हैं, या उनको आपका लीडर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब उसमें आपको याद है कि इनके एक जो दोस्त थे, दोस्त तो खैर नहीं थे, वज़ीर दिफा थे जो इनके खिलाफ हैं, गैंट्स जिनका नाम है, उन्होंने इनके बाद रोटेशन में आना था। उनकी रोटेशन को रोकने के लिए इन्होंने ये सारी गेम की है। असल में ये बड़े गेमर बहुत हैं नेतन्याहू साहब, और इनकी गेम्स आपने देख भी ली थी कि कैसे इन्होंने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को हिला दिया था इसराइल को तस्लीम कराने के चक्कर में। अच्छा, अब अगर क्नेसेट जो है वो इस तरह का रूल पास करती तो वो उसमें बहुत ज्यादा मसाइल उनके लिए जो बाकी पार्टीज हैं उनमें आ जाने थे। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो हो सकता था इनके चांसेस कि मंसूर अब्बास जो मुसलमान हैं वो इनको सपोर्ट करते, लेकिन इन्होंने उनसे बात तक नहीं की। यानी ये एरोगेंस की आप इंतहा देखें कि इन्होंने उससे बात तक नहीं की कि जनाब आप हमें वोट दे दें इसमें, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने फिर इनको वोट नहीं दिया। और जब इनको वोट नहीं दिया तो इनके सारे का सारा जो मामला था वो धड़ाम से नीचे आके गिरा। इसी वजह से इनके ऊपर शदीद क्रिटिसिज्म हुआ। इनके ऊपर जो अपने जो इनके सो कॉल्ड एलाइज हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया इनको कि जी आपने ये क्या किया है, सारा कुछ आपने खराब करके रख दिया है, और बहुत ज्यादा मसाइल जो है वो क्रिएट हो गए। अब सूरत हाल ये है कि पार्लियामेंट जो है वो इस वक्त बिल्कुल एक मुअल्लक किस्म की सूरत हाल है, लेकिन जाहिर है कि एक सिचुएशन पैदा हो चुकी भी है, उसमें से निकलना भी है। अब उसमें सूरत हाल ये है कि जो हार्ड क्वेश्चंस हैं वो क्या है, वो ये हैं कि अगर नेतन्याहू साहब अपने मामलात को इस तरह हल नहीं कर पाते तो फिर ऑब्वियस चॉइस ये लग रही है कि जो अपोजिशन पार्टीज दूसरी हैं जो अभी फिलहाल ऑपोजिशन है वो मिल के कोलिशन गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है ना, अगर वो आ जाती हैं तो फिर ऑब्वियस है कि नेतन्याहू साहब का जो दौर है वो खत्म हो चुका, और उसमें उनके लिए अब मसाइल जो हैं वो पढ़ने शुरू हो जाएंगे। आपको पता है कि ये मैंने पहले कहा कि ये गेम्स बड़ी खेलते हैं, इनकी गेम्स जो हैं वो सारी अब उलट पड़नी शुरू हो गई हैं। किसी को अब इनके ऊपर एतबार नहीं रहा। मंसूर अब्बास साहब समेत जो इनको हो सकता था कि वो सपोर्ट करते, लेकिन मंसूर अब्बास ने भी जो जिनकी अरब मुसलमानों की पार्टी हराम, वो उनके हाथ में इस वक्त समझ लें कि ट्रम्प कार्ड आ चुका है, और वो जिसको भी चाहे वोट दें और वो हुकूमत में आ सकता है। अब ये जो बेसिकली हो ये रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं नेतन्याहू साहब, उनका जो मुस्तकबिल है वो चूंकि अब हंग है, उसके अंदर कोई तयक्कुन की सूरत हाल नजर नहीं आ रही है, और उसी वजह से मामला जो है वो खराब होते चले जाएंगे। और अगर 15 दिन के अंदर अंदर वो कोलिशन मजीद चांसेस जो नजर आ रहे हैं कि नहीं हो सकती, अगर मनाने में नाकाम हुए तो प्रेसिडेंट फिर दूसरी पार्टीज को कहेंगे जी कि आप आए और इसको आप मामले को हल करें। और फिर हम देखेंगे कि जो मार्च 23 का इलेक्शन भी हुआ था उसका अब पता नहीं उसमें क्या बनता है कि नहीं बनता, लेकिन अगर 5वीं इलेक्शन की तरफ भी जाते हैं तो अगर वो दूसरी पार्टीज ना बना सकी तो 5वां इलेक्शन जो है वो फिर सामने खड़ा हुआ होगा। अब इस सिचुएशन का पूरा सिनेरियो जो आप सामने मैंने आपका रखा है, इसका देखें कि मिडिल ईस्ट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। MBS शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, उनके ताल्लुकात इनके साथ बड़े जबरदस्त थे, और अगर ये मामलात इनके हाथ से निकलते हैं तो फिर आप ये देख लीजिए कि MBS की भी सिचुएशन जो है, क्योंकि इसराइल उनको बहुत सपोर्ट कर रहा था, जो नौम सिटी है उनके बारे में भी वहां पे भी सारी कुछ तो वो सारी पॉलिसीज जो हैं वो रिवर्सल में आ सकती हैं। और खासतौर पे UAE के साथ जो उनके मामला चल रहे हैं, जो इनकी नॉर्मलाइजेशन हो रही थी, वो कहाँ तक जाएगी, किस हद तक उसमें जोश और जज्बा रहेगा या नहीं रहेगा, वो देखने वाली बात है। आपको पता है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन का सिलसिला हुआ था चैड के साथ भी हुआ था, चैड में आज ये वहाँ पे कू हुआ है, लड़ाई हुई है, और वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, सिटिंग प्रेसिडेंट, उनको कत्ल कर दिया गया है, और ये वही प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की थी। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि सिचुएशन जो है वो कहाँ तक जा रही है, और इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या क्या चीजें अफेक्ट हो सकती हैं उससे। इसके ऊपर हम आपको मजीद अपडेट करते रहेंगे। उम्मीद है कि हम जो बाकी चीजें हैं उनके साथ इनको ग्लव इन करके इंशाल्लाह आपके साथ जो मिडल ईस्ट के साथ साथ जो दूसरे इशूज हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।